क्या یہ تین نام میرے مولا جو آپ کے ہیں نا، ان کی تاثیر، وہ کون تین نام؟ اللہ پوچھتے کون سے تین نام؟ مولا میں نے ابھی بتائے ہیں نا جو آپ کی صفت، وہ ہیں یا لطیف ہو، یا علیم ہو، یا خبیر۔ وہ تین نام جو مولا میں نے آپ کو دیے ہیں، وہ تین نام جو آپ کے ہیں، بس ان تین ناموں کی تاثیر عطا فرما، ان تین ناموں کے کمالات عطا فرما۔ میں نے اس کو کہا کتنے عرصے میں کیا نظر آئیں گے یہ نام؟ کتنے عرصے میں؟ میں کہ چاہے تو 1 منٹ میں، 1 دن میں، 1 گھنٹے میں نہ ملے تو ساری زندگی میں، وہ تو تیرا وجد اور وجدان ہے، وہ تو تیری دیوانگی ہے، تیرا بکھر جانا ہے، تیرا ٹوٹ جانا ہے، اللہ کے نام میں فنا ہو جانا ہے۔ میں نے کہا نا، اس ڈاکٹر صاحب نے کئی سال اللہ والوں کی محفل کو سہا۔ میں نے تو میں کہتا آئے بیٹھے نہ، سہا۔ کسی درویش فقیر کی محفل میں سہنے سے ملتا ہے، سہا۔ اچھا، اس نے پڑھنا شروع کیا، پڑھتا گیا پڑھتا گیا، واقعی اس کے اوپر دنیا، مال، رزق، عزت، زندگی، وقار، شان و شوکت، نعمتیں، عزتیں، برکتیں، عطائیں، شفقتیں کھلی، پر جنات کی دنیا نہیں کھلی۔ کہنے لگا سب کچھ کھل رہا، وہ نہیں کھل رہا جو میں چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جو چیز اللہ نے پردے میں رکھی ہے وہ ہر کسی پہ نہیں کھولتا اللہ، پردے میں بھی اللہ نے رکھی ہے، اور پردہ بھی اللہ نے دیا ہوا ہے، کھولے گا تو بھی اللہ، کھولے گا تو بھی، اور کھلے گی اس کے اوپر جس کے اندر اللہ کا نام گھل گیا ہو اور کھل گیا ہو اور گھل گیا ہو، گھل گیا، ڈیزالو ہو گیا ہو، کھل گیا ہو اللہ کا نام۔ اس نے پڑھنا شروع کر دیا، اس نے پڑھتے پڑھتے پھر اس پہ جب کھلانا نظام، اس کے کچھ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن کچھ چیزیں، موضوع جو ہمارا ہے کہ ہماری زندگی میں جنات کا عمل دخل کیا ہے، تو میں نے کھانے کا بتایا، بیت الخلا کا بتایا، گھر کا بتایا، ایک اور عمل دخل ہے۔ کائنات میں سب سے پہلا جوڑا میاں بیوی کا بنا ہے، بہن بھائی کا نہیں بنا، ماں باپ کا نہیں بنا، پھپھی ماموں کا نہیں بنا، دوست سنگی کسی کا نہیں بنا۔ آدم تھے، اداس ہوئے، اللہ پاک جل شانہ نے ان کے لیے ایک زندگی کا ساتھی عطا فرمایا۔ کائنات میں سب سے خوبصورت عورت حضرت حوا تھی، آدم ہوئے۔ ہمیشہ جانور کا جو نر ہے وہ خوبصورت ہوگا، جانور کی مادہ خوبصورت زیادہ نہیں ہوگی، لیکن اللہ کا نظام ہے انسانوں میں جو نر ہے وہ خوبصورت زیادہ نہیں ہوگا، انسانوں کی جو مادہ ہے وہ خوبصورت، اللہ کا نظام ہے۔ مور دیکھیں، میں اس دن حویلی میں تھا، ابھی عید میں حویلی میں تھا، تو حویلی میں مور ہے، اوہو، کبھی موج میں آتا ہے تو اس کا حسن دیکھا، اور اس کی مادہ ساتھ پھر رہی تھی۔ میں کہ واہ مولا تیرا نظام عجب ہے، انسانوں میں تو نے کیا نظام بنایا اور جانوروں میں تو نے کیا نظام بنایا۔ ہماری زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری جنات ہماری زندگی میں داخل ہیں، تو میاں بیوی کا رشتہ سب سے پہلے بنا پوری کائنات میں، میاں بیوی۔ پھر یہ میاں بیوی جو ہے نا جبل رحمت پہ ملے، خوش ہوئے، پھر لگے اس شکرانے میں چلتے ہیں اور جا کے طواف کرتے ہیں۔ رات پڑ گئی ایک پہاڑوں پہ، پہاڑوں میں رات پڑ گئی، پہاڑوں میں، تو اس پہاڑوں میں رات میں ایک ہی چادر میں سوئے، اس کا نام، ایک ہی چادر میں رہنے کا نام مزدلفہ ہے۔ حج پہ حاجی جاتا ہے عرفات میں رات، اور پھر طواف زیارہ کہتے ہیں، تو جا کے طواف کیا۔ ایک جنات کی دنیا کا ایک ہے، پانی پہ تخت بچاتے ہیں جنات، شیاطین پانی پہ تخت بچھاتے ہیں، اور پانی پہ تخت بچھا کے ایک
बहुत बड़ी महफिल मजलिस लगती है और पूछा जाता है, हाँ भाई तूने क्या किया? उसने कहा मैंने लड़ाई करवाई। उसने कहा ठीक है। उसने कहा चोरी करवाई। कहा ठीक है। उन्होंने कहा तूने? उसने कहा एक बंदे को धक्का दिया, जख्मी किया, हादसा कराया, फलां कराया, कत्ल करवाया। उन्होंने कहा ठीक है। एक बंदा खड़ा हुआ, एक लंगड़ा शैतान, उसने कहा क्या कहा? कहा मियां बीवी में झगड़ा कराया। वो सताची में आ मेरे हां न लग, आ मेरे दिल से लग। उसको भींचता है, उसको प्यार देता है, उसको करता है। वह कि ये सबसे बड़ा काम तूने करवाया। मैंने कहा ये है काम, ये तूने कराया है, सबसे बड़ा काम। हमारे घरों में जिन्नात हमारी जिंदगी में दाखिल हैं, हमारे फिर जिस्म में दाखिल हैं। वो कैसे? मेरे हुजूर ने फरमाया जब सुबह उठा करो, नाक को सीखा करो पानी डाल के। नाक के अंदर 2 नथने जहां खत्म होते हैं नाक के, इसके अंदर, इसको नाक का बांसा कहते हैं, इसके अंदर जिन्नात रात यहीं गुजारते हैं। उनको निकालना हमारे बस में नहीं है, उनकी क्यांगा यही। मेरे आका ने फरमाया रात यहीं गुजारते हैं। फरमाया जो सुबह उठ के वुजू करता है और नाक में पानी डाल के सींकता है तो नाक पाक हो जाता है, साफ हो जाता है, और उनके रहने की नापाकी, गिलाजत, खबासत, नजासत खत्म हो जाती है। जब वो खत्म होती है, इसके 11 फायदे होते हैं। आप 11 फायदे, शायद ये जिंदगी में पहली दफा बता रहा हूं। इसके 11 फायदे हैं। सबसे पहला फायदा यह है इबादत की तौफीक। अब मैं फायदे गिनूंगा नहीं, बयान करूंगा, गिनेंगे आप खुद। इबादत की तौफीक मिलती है, सजदों में सरूर आता है, कयाम में ताकत होती है, नजरों में नूर आता है, इबादत की हलावत महसूस होती है, लाइलाज बीमारियां खत्म होती हैं, दिमागी निजाम बेहतरीन, इसकी याददाश्त खत्म नहीं होगी, इसकी नजर तेज होगी, इसका हाफजा लाजवाब होगा, बहुत बड़े हादसों और चोटों से बचेगा, ऐसे निजाम से बचेगा कि ये पागल हो जाए, इसका दिमाग खत्म हो जाए, दर्द सर से बचेगा, फालिज से बचेगा, लकवे से बचेगा, लाइलाज बीमारियों से बचेगा। इस पर जादू का वार नहीं होगा, हो तो टूट जाएगा, बंदिश का वार हो तो टूट जाएगा, नजर बद का वार हो तो टूट जाएगा, इसके चेहरे पे नूर होगा, इसकी जुल्मत खत्म होगी, इसके चेहरे को देख के लोगों को अल्लाह याद आएगा, अल्लाह का नाम याद आएगा। हदीस में आता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देख के लोगों को अल्लाह याद आता है। नाक में शैतान रात नाक के पिछले हिस्से में गुजारता है। जिन्नात, मेरे आका ने फरमाया 1997 में मेरी पहली किताब आई, सुन्नत नबवी और जदीद साइंस। अल्लाह ने उसको बहुत पजीराई दी, दुनिया की कई ज़बानों में तर्जमे हो चुके। मेरा मौजू रहा इस्लाम और साइंस, सुन्नत और साइंस। बयान नहीं करता ज्यादा। साइंस की दुनिया ने 97 को कितने साल हो गए? 28 साल हो गए। 28 साल। कितने साल हो गए? 28 साल हो। उसके बाद और भी आती रही किताबें। गोरा इस बात की तहकीक में है, हर एक सुन्नत को अपनी जिंदगी में कैसे शामिल आप करें, और वो कहते हैं कैसे तहकीक करें। और कहा कि उसके असरात, उसके वाकयात, उसके मुशाहिदात और उसके हक़ाइक़ नाक में मौजूद हैं। ये एक और दुनिया है गोरों की कि वो मेरे आका की एक सुन्नत पे बहुत ज्यादा
तहकीक कर रहे हैं बहुत ज्यादा। आप ये देखें कि जिन्नात का आपकी जिंदगी में क्या दखल है, मेरी आपकी जिंदगी में क्या दखल है। और बताऊं, भौं के नीचे फरिश्ते रहते हैं, नाखून के नीचे जिन्नात रहते हैं। आज भी साइंस कहती है अपने नाखून न बढ़ने देना, इन नाखून के नीचे एग्स होते हैं, ऐसे छोटे छोटे अंडे होते हैं जिनको आम नजर नहीं देख सकती, आम खुर्दबीन नहीं देख सकती, आम मशीन नहीं देख सकती, कोई खास मशीन देख सकती है, खास मशीन। उस दिन एक साहब ने मुझे मोबाइल पे वीडियो दिखाई, मोबाइल पे वीडियो दिखाई, मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप नेट नहीं है, सादा सा है, उसने दिखाई, उसने दिखाया कि एक साहब ने नाखून के नीचे से नेल कटर की धार के साथ, नेल कटर के साथ ना एक छोटा सा ऐसे लगा हुआ होता है, उसकी नोक होती है, उसके साथ मैल निकाली, उसके अंदर कीड़े थे, सारे कीड़े थे, सारे कीड़े थे। कहने लगे ये सारे इंटेस्टाइन वर्म्स हैं, उनके एग हैं, कीड़े हैं। जिन्नात रहते हैं नाखून के नीचे, शयातीन रहते हैं, और भवों के नीचे फरिश्ते रहते हैं। इसलिए भवों के वुजू के बाद जो भवों का पानी भवों में रह जाता है थोड़ी देर के बाद, अगर वो ऐसे उठा के कतरा जहां दर्द है, तकलीफ है, दुख है, जख्म है, वहां लगाए, ठीक हो जाता है। अगर कुछ अरसा मुसलसल ये अमल करे, वो फरिश्तों का पानी होता है। जैसे बारिश का पानी फरिश्तों का पानी होता है। खुशकिस्मत घराना वो होगा जिस घर में बारिश का पानी पिया जाएगा। मेरी कोशिश है, मैं ऊपर पानी जमा करता हूं, बोतलों में जमा करता हूं, फिर उसमें जाला भी पड़ जाता है, फिर छान लेता हूं बोतलों में बारिश का पानी। बाबा फरीद कहने लगे, मेरे मुर्शिद के बैत में जब मैंने हाथ में हाथ दिया, फिर कहा एक कतरा मेरे अंदर कोई पानी नहीं गया सिवाय बारिश के, मुझे पानी नहीं पीने दिया गया। और आकर रूह की मंजिलें, विलायत की मंजिलें, रूह की मंजिलें, विलायत की मंजिलें तू तय करे, और तेरे अंदर बारिश के अलावा कोई और कतरा, क्योंकि मेरे आका का फरमान है, बारिश के हर कतरे के साथ फरिश्ता नाजिल होता है। बस बात ही खत्म हो गई, उससे अगली बात कुछ नहीं। साइंस कहती थी, इससे पहले जरा उसकी भी थोड़ी सी बात कर दूं, कि बारिश के साथ पानी जो होता है, ऊपर हमारी फजाओं हवाओं में आलूदगियां हैं, पानी में आलूदगी होती है। अब साइंस कहती है बारिश के कतरे की रफ्तार बुलेट से ज्यादा है, गोली से ज्यादा है। अगर ये तहें इसको ना तोड़ती, ये बंदे के आर पार हो जाता। बारिश की जो कतरे की रफ्तार है, जो ऊपर से गिरता है, गोली से ज्यादा तेज है। उठा के साइंस की दुनिया देखें, अल्लाह पाक ने हवाएं में, फजाओं में तहे रखी हैं, उनसे टकरा 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 के इसकी ताकत कम होते होते फिर भी अगर हाथ पे पड़े तो असर रखता है। मैं एक दफा था तो एक बंदे ने सर मुंडवाया, ऊपर से बारिश शुरू हो गई, सर मुंडवाते ही ओले पड़े, ओले तो नहीं पड़े, बारिश हो गई। तो उसके सर पे मैंने देखा, खुद महसूस किया कि उसके सर पे महसूस हुआ कि इसको चोट लगी। मैंने उससे पूछा, कहा बहुत चोट लगी। तो ये तो अल्लाह ने तहें रखी है, वरना तो आर पार हो जाते। अब साइंस कहती है कि ये इतनी ताकत से कतरा आता है कि उन आलूदगियों को खुद मिटा के रख देता है। वो आलूदगियां जो पानी में शामिल होनी थी, मिटा के रख देता है। तो हमारे तो जिस्म के, फिर आका ने फरमाया, हमारे जिस्म के खून के अंदर शयातीन, जिन्नात खून में गर्दिश करते हैं, गर्दिश करते हैं, और उनकी गर्दिश का रिजल्ट मुख्तलिफ शक्लों में मिलता है। एक अमल मैं बताया करता हूं, जो बंदा नाफ में उंगली रख के 66 बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता है, कि इसके अदद 66 है, पढ़ता है 66, पढ़ता है कितनी दफा? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर, हर नमाज के बाद, सुबह शाम, और दिन में कभी किसी वक्त, हर नमाज के बाद, सुबह शाम, वरना दिन में कभी किसी वक्त, हर हालत में। जो बंदा पढ़ेगा
یا ہائی بلڈ پریشر کا آخری علاج، بہترین علاج، غصے کا علاج، جلال کا علاج، جذبات کا علاج، گناہوں سے بچنے کا لاجواب علاج، نافرمانیوں سے بچنے کا لاجواب علاج، کانوں کو اللہ کی اطاعت میں لانے کا، آنکھوں کو اللہ کی اطاعت میں لانے کا، دل کو اللہ کی محبت میں لانے کا علاج ہے 66 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ناف میں ہمارے تصوف اور صوفیہ اور فقراء کی زندگی میں لطیفہ نفس ناف میں ہوتا ہے، لطیفہ قلب یہاں ہوتا ہے، سلطان الاذکار یہاں سر کے، سری خفی اخفا یہ لطائف ہیں۔ لطائف، لطیفے سے مراد یہ لطیفہ نہیں جس میں بندے ہنس پڑے، چلو وہ بھی سنا دیتا ہوں، اچانک آیا تو وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ ایک نا مائی صاحبہ ڈاڈی تھی، وہ بولے جا رہی تھی، بندہ بیچارہ چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، بولتے بولتے بھئی میں نہیں بولتا، بولوں گا جھگڑا ہو جائے گا، نقص امن ہوگا، جان مال کا خطر ہوگا، دفعے لگ جائیں گے، میں نہیں بولتا۔ کہنے لگے میں تیری اس گنگی بدماشی کا بھی علاج کرتی ہوں، تیری گنگی بدماشی کو تو نے جو کی ہے نا، اب نہ بولنا بھی گنگی بدماشی ہے، بندہ کیا کرے۔ تو یہ لطیفہ نہیں، یہ لطیفہ نہیں، یہ لطائف ہوتے ہیں درجات کمالات روح اور روحانیت کے۔ تو لطیفہ نفس ناف میں ہے، جو انگلی رکھ کے 66 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زندگی کا معمول بنا لیں۔ اور ایک میرا مشورہ ہے، پوری امت کا تصور کر لیں، جتنی بڑی دعا ہے، ایک درویش کے پاس بندہ کہ حضرت دعا فرمائے، فرمائے چھوٹی کروں یا بڑی؟ حضرت بڑی دعا فرمائے، فرمائے پوری امت کے یہودیوں، عیسائیوں، کافروں، ہندوؤں، سکھوں، مسلمانوں، اللہ کے نام ماننے والوں، سب کے لیے مانگ، سب کے لیے مانگ۔ جتنی بڑی دعا ہوگی تیرے دل میں سب کی خیر خواہی ہو، مسلمانوں کے سارے طبقات، غیر مسلموں کے سارے طبقات، سب کے لیے مانگ، تیرے دل میں سب کی خیر خواہی، تیرے دل میں سب کی خیر خواہی، سب کے لیے مانگ، سب کے لیے مانگ۔ اور مانگا تو میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ اعوذ باللہ والا وظیفہ جو ہے، اگر آپ پوری امت کے لیے، اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے مانگیں گے، اس کی تاثیر بڑھ جائے گی، اس کی طاقت بڑھ جائے گی، اس کی قوت بڑھ جائے گی۔ کیوں؟ یہ اربوں اربوں کے لیے مانگے گا۔ اچھا پھر پوری امت میں جنات ہیں، اور جنات اربوں کھربوں، کھربوں سے کھربوں ہیں، اربوں ہیں، کھربوں سے کھربوں ہیں۔ یہ سب کے لیے مانگے گا۔ جب سب کے لیے مانگے گا تو پھر اس کی زندگی میں اس کی تاثیر آئے گی۔ حیرت انگیز کہا نا، جس زور سے گیند پہ دیوار کو مارو گے اسی دیر سے واپس آئے، اسی طاقت سے واپس آئے گی جس طاقت سے مارو گے۔ اس کو کھربوں کا فائدہ ہوگا، اس کو کھربوں کا فائدہ ہو۔ اگر میرا اور میری نسلوں کا بھی تصور کرے گا، اللہ اور زیادہ فائدہ دے گا۔ یہ مسلسل تجربات ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو فتنوں کے جال کے لیے دن رات پوری طاقت سے وظائف کر رہے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو غفلت میں چلے گئے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو غفلت میں چلے گئے ہیں۔ ان پہ تو ہے افسوس جو غفلت میں چلے گئے۔ 2-4 دن فکر کیا، کسی کی ڈیوٹی میں نے لگائی، کسی نے خود اپنے ذمہ لیا، 2-4 دن کیا فتنوں کا نظام کو ختم کرنے اور توڑنے کے لیے، اس کے بعد پھر غفلت میں چلے گئے۔ اس دن میرے سامنے ایک بندہ آیا، اس کی میں نے ذمہ داری اعمال کی لگائی تھی، فتنوں کو توڑنے کے لیے میرے سامنے آیا، میں نے نہیں پوچھا، کیونکہ 2 دفعہ کے بعد اس کو چھوڑ دیا اس کے حال پہ، کہ اگر وہ خیر اپنے گلے میں نہیں چاہتا، وہ برکتیں نہیں چاہتا، اور اس کے اندر درد اور احساس نہیں ہے، تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ اور میرے حضرت فرماتے تھے اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہے کہ مرشد پوچھنا چھوڑ دے، اس سے بڑی کوئی خود سزا ہی نہیں ہے۔ مرشد خود حال حوال لینا، پوچھنا چھوڑ دے، مرشد تنبیہ کرنا چھوڑ دے، مرشد یاد دہانی کرنا چھوڑ دے، اس سے بڑی کوئی خود سزا ہی نہیں ہے۔ کتنے ایسے ہیں
जिन्होंने अपने जिम्मे लिया हुआ है कि कितमीर के जाल को तोड़ेंगे, फितनों को तोड़ेंगे, और वो लगे हुए हैं पूरी यकसुई, पूरे ध्यान, पूरे दर्द, पूरे जज्बे के साथ। और चंद ऐसे हैं बेचारे जिनको याद दहानी भी कराई भी जाए तो वो छोड़ चुके हैं। क्यों? फरमाया, ऐ अल्लाह मुझे खैर की चाबी बना, शर का ताला ना बना। ये वो लोग हैं जो खैर की चाबी हैं, जो फितनों को तोड़ने के लिए अपने ऊपर अमल, यकसुई, ध्यान, जज्बों के साथ कर रहे हैं। मैं उनको मुबारक देता हूं, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और जो छोड़ चुके हैं उनको याद दहानी कराता हूं, शायद उनकी आंखें खुल जाएं और शायद उनका दिल खुल जाए। क्यों? याद रखिएगा, फितने रोज नहीं आते, पर आते आजमाने के लिए। कई छलनियों से निकल जाते हैं, कई छलनियों से निकल जाते हैं। मेरा इशारा ही है। तो ये जो तवज्जो वाली है ना, पूरी उम्मत का ध्यान करके पढ़ना, ये जो 66 बार है, पूरी उम्मत का ध्यान करके पढ़ना, पूरी उम्मत का ध्यान करके पढ़ना और सख्त तवज्जो करके पढ़ना। आप अपनी जिंदगी में इनकलाब देखेंगे, आप अपनी जिंदगी में हैरत अंगेज तब्दीली देखेंगे। मैं अभी घर से बाहर नहीं निकला, हमारी जिंदगी में जिन्नात कहां कहां हमारी जिंदगी में दाखिल हैं, उनका अमल दखल है। मैं घर में, फिर घर से जिस्म में आया हूं कि हमारे जिस्म के बाल बाल, रुएं रुएं, कतरे कतरे में जिन्नात गर्दिश करते हैं, जिन्नात गर्दिश करते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों, तकलीफों और मुख्तलिफ वाकयात और गुनाहों का जरिया बनते हैं। उसके लिए कह रहा हूं कि उंगली नाक में रख के 66 बार ये आऊज़ु बिल्लाह पढ़ें। और अपनी जिंदगी में अगर केस बहुत ज्यादा संजीदा हो और बहुत ज्यादा हो तो फिर हर नमाज के बाद, वरना सुबह शाम, वरना दिन में एक बार तो हरगिज न छोड़े। और पूरी उम्मत अपनी नस्लों, अपनी निजाम, मेरी नस्लों का जरूर तसव्वुर करके पढ़े। जैसे मैं अक्सर कहा करता हूं कि सूरत अल्हाकुमुत तकासुर हर नमाज के बाद एक बार मेरा और मेरी नस्लों का जरूर तसव्वुर करके, और माशाअल्लाह मुखलिसीन पढ़ रहे हैं। हमारी जिंदगी में दखल है जिन्नात का, हमारे जिस्म में और हमारे जज्बों में, जिस्म में भी और हमारे जज्बों में भी जिन्नात का दखल है, जिन्नात का दखल है। हमारे जिस्म में, हमारे जज्बों में जिन्नात का दखल है और जिन्नात रहते हैं। हादसात हुए, हिंदू मुस्लिम फसादात हुए। मैं एक इंडिया के शहर की बात कर रहा हूं। इतने हुए कि शहर बंद हो गया, लोग हिजरत कर गए, फसादात हुए और कई अरसा तक घर बंद रहा, घर बंद रहा। आखिरकार घर के अफराद वापस आए, ताला लगा के चले गए थे। उन्होंने घर का एक खजाना था, एक जगह दफन किया था, जाते हुए कि घर के दरवाजे कोई तोड़ के आए तो निशानी के तौर पे वो हमारे पास, वो दफन किया। जब वापस आए तो वो दरवाजा खोलें जिस कमरे में खजाना था, तो आवाज आती थी, खबरदार नहीं खोलना, हैबतनाक आवाज। दाएं बाएं देखा, कहा हमारा शक है, वहम है कोई। फिर हाथ लगाए तो फिर उससे खतरनाक और हैबतनाक आवाज आई, खबरदार नहीं खोलना, खबरदार नहीं खोलना। और फिर उससे हैबतनाक, डर गए। कुछ दिनों के बाद फिर दरवाजे को हाथ लगाया खोलने के लिए, फिर आवाज आई। अब तक जिंदगी गुजर गई, कोई दरवाजे के करीब ना जा सका, जिंदगी गुजर गई, कोई दरवाजे के करीब ना जा सका। फिर जिंदगी गुजर गई, हत्ता कि वो मर गए। मरने के बाद उनकी औलाद नहीं थी, औलाद नहीं थी। तो घर में कोई और वारिस आए, घर के वारिस आए तो उन्होंने कहा ये दरवाजा पुराना है, इसको खोलें। खोला तो कोई आवाज नहीं आई। देखा तो एक जगह कुछ महसूस हुआ, क्योंकि वो गए थे जल्दी जल्दी बंद करके। बात को गौर से समझें, मिट्टी का उभार उतार चढ़ाव महसूस हो रहा था, यहां कोई चीज खोदी गई है। उन्होंने जब खोदा तो नीचे से खजाना निकला। रात को
ख्वाब में आके बताया ये खजाने की हिफाजत हमने की थी, हम जिन्नात हैं, तुम्हारे बख्त मुकद्दर को हमने देना था, तुम तक ये माल पहुंचाना था। तो इसने पूछा, जो ख्वाब देख रहा था, इसने पूछा ये माल बख्त मुकद्दर मेरे नसीब में क्यों आया? कहा तेरा अब्बा अमाल करता था, एक फकीर दुर्वेश के पास जाता था, अल्लाह राजी हुआ उन अमाल और फकीर दुर्वेश के पास जाने की वजह से। अल्लाह ने तेरे नस्लों को फक्र और गुर्बत से बचा के अल्लाह ने ये लावारिस लोगों का खजाना तुम्हें अता किया। हमारी जिंदगी में कितना अमल दखल है। 1931-34 के करीब, 1929-31 के करीब ताउन की वबा आई, बस्तियों की बस्तियां खत्म हुई। हर सदी में हर दौर में आई है ताउन की वबा, हर सदी में हर दौर में आई है ताउन की वबा। नस्लों की नस्लें खत्म हो जाती हैं। इतनी तो आई, ये बताएं इसकी वजह से नमी हो रही है या सुकून मिल रहा है? नमी तो नहीं हो रही आपको, हब्स तो नहीं हो रही, बस ठीक है। तो हत्ता कि इतना ताउन मिलता, इतना ताउन आता था, इतना ताउन, और बंदा घर का एक मर गया, क्यों? दफन करने वाले, कफन देने वाले, कब्र खोदने वाले वो भी मर गए, जनाजा पढ़ने वाले, उठाने वाले वो भी मर गए ताउन की वबा में। तारीख ने ताउन की बहुत वबाएं लिखी हैं। तो फिर ये होता था, घर का एक बंदा मरा, दूसरे का सारे घर को मर जाता था, तो कोई भले मानस आते थे, घर के दरवाजों और खिड़कियों को लेप देते थे, वही कब्र होती थी। लेपते इसलिए थे कि इनकी अफूनत से कोई और वबा ना फैले। तो वहां इलाके का एक शख्स था, खाता पीता आदमी था, उसने कहा मैं अल्लाह के नाम पे खैरात करूं, कुछ खिलाऊं पिलाऊं, अल्लाह तो मुसीबतें वबाएं टाल, सदका मुसीबतें टालता है, सदका वबाएं टालता है, सदका बुरी मौत से बचाता है, सदका उम्र में बरकत देता है। तो ये फजाइल, फवायद, बरकत और कमालात थे। तो उसने जो है, उसने वो खाना किया अच्छा खासा, सबको बुलाया। अभी खाना लगा ही नहीं था तो कुछ लोग, 2-3 थे, कहते अभी खाना दो, हमने जाना है, और उलझ रहे थे। तो जो खुद्दाम और गुलाम थे वो कहने लगे अभी खाना लगने वाला है, सब खाएंगे तो आप भी खा लें। क्या नहीं, अभी दो। साहिब खाना जो मालिक थे वो आए तो उनकी मिन्नत करने लगे, आप मेहमान हैं। कहा नहीं, हम फिर जा रहे हैं। तो वो गए तो उनको मनाने के लिए पीछे गए। उनको मनाने के लिए तो वो कहने लगे, वो देखो, ऐसे इशारा किया ना तो आगे से पर्दे हट गए। अभी तो मैंने या लतीफो या अलीमो या खबीर के फायदे भी बताने हैं। याद है कि उसने पढ़ा, कहा मुझे जिन्नात नजर आए। उन्होंने कहा, दोनों उन लोगों ने कहा, वो देखो, देखा तो सामने झोंपड़ियां थी, बंदे उठ रहे, भाग रहे, बच्चे खेल रहे, धुआं निकल रहा, खाना पीना पकाना, शाम का वक्त था। ताकि हमारी वो झोंपड़ियां, सुबह यहां ताउन आने वाला है, रातों रात निकल जाओ। तुम कौन हो? कहा हम जिन्नात हैं, हमारी ड्यूटी लगी है, कुदरत रब्बी से आजमाइश है, ताउन की वबा हमने लानी है, निकल यहां से। गुम हो गए, गैब हो गए। वो आया, खाना अल्लाह 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 अल्लाह
आमीन। या अव्वल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन या ज़ल जलाल वल इकराम। अल्लाह हमारी हाज़री कबूल फरमा, हमारा बैठना आना कबूल फरमा, हमारा चलना बैठना कबूल फरमा, हाथ उठाना कबूल फरमा, हमारी ज़रूरतों को गैब से पूरा फरमा। अल्लाह हमारी हाज़री कबूल फरमा, हमारी मुश्किलें हल फरमा, परेशानियां दूर फरमा, इल्लत जिल्लत और किल्लत से बचा। अल्लाह इन रोने वालों को अता फरमा, इन सिसकने वालों को अता फरमा। पूरी दुनिया में जहां तेरी बंदियां बंदे बैठे आमीन कह रहे, सबकी आमीन कबूल फरमा। पूरी दुनिया में जहां तेरी बंदियां बंदे आमीन कह रहे, सबकी आमीन कबूल फरमा, सबकी मुश्किलें हल फरमा, सबकी नाकामियां दूर फरमा, सबके हालात बेहतर फरमा। अल्लाह हमारी परेशानियां दूर कर दे, बे औलादों को औलाद दे दे, बेघरों को घर दे दे, बेदरों को दर दे दे, बेसहारों को सहारा दे दे। अल्लाह हमारे उठे हुए हाथ भर दे, रिस्क से भर दे, सेहत से भर दे, बरकत से भर दे, शिफा से भर दे, नाकामियां खत्म फरमा, परेशानियां दूर फरमा। अल्लाह हमारी हालात बेहतर फरमा दे। या अल्लाह जो तंग दस्त हैं, जो परेशान हैं, जो गम ज़दा हैं, तस्बीह खाने में आके दुआएं करते हैं, दूर बैठे दुआओं पे आमीन कहते हैं। आका अल्लाह किसी को महरूम ना फरमा, अल्लाह किसी को महरूम ना फरमा। अल्लाह सबको दे दे, सबकी झोलियां भर दे, सबके घर बार आबाद कर दे, और नस्लों को शाद कर दे, और नस्लों को बामुराद कर दे, नाकामियां खत्म कर दे, कामयाबियों के दरवाजे खोल दे, बख्शिश के अता के दरवाजे खोल दे, रहम और रहमत के दरवाजे खोल दे। अल्लाह अगर कोई मुसीबतें आसमानों से हमारे लिए उतर चुकी हैं, आजमाइशें उतर चुकी हैं और बलाएं उतर चुकी हैं हमारी खताओं की वजह से, सखिया का बस माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। अल्लाह माफ कर दे, मौला माफ कर दे। अल्लाह माफ कर दे, हम तौबा करते हैं सारे माफ कर दे, हम फिर तौबा करते हैं माफ कर दे, पूरी उम्मत की तरफ से तौबा करते हैं माफ कर दे, मुश्किलें आसान कर दे, परेशानियां दूर कर दे, नाकामियां खत्म कर दे, आबाद कर दे, शाद कर दे, आबाद कर दे, शाद कर दे, बामुराद कर दे, रिस्क दे दे वसी, बेटे नेमते अता कर,
بڑے گھر بڑی سواریاں عطا کر، رزق میں وسعت دے، برکت اور عافیت دے، کرم اور فضل دے، رحم اور رحمت دے۔ مرے ہوئے اٹھے ہوئے ہاتھ کشکول خالی نہ بھیج، ان کو اے اللہ اپنے خزانوں سے بھر دے، ان کو اپنے خزانوں سے بھر دے، ان کو اپنے خزانوں سے بھر دے، ہماری ہر مشکل آسان کر دے، ہماری ناکامیاں دور کر دے اور پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ دے دے، بن مانگے دے دے، بن مانگے دے دے، جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرما، اور کسی کو محروم نہ فرما، کسی کو محروم نہ فرما، کسی کو محروم نہ فرما۔ آمین 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 آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔